So today we are discussing digestive system of frog. Okay, and the digestive system of frog is divided into two parts. The one part is called as alimentary canal, another part is digestive glands. So alimentary canal के बारे में हम लोग थोड़ा सा broadly discuss करेंगे. Digestive glands जो है उसमें हम लोग को two types of digestive glands we will get. One is liver, another is pancreas. Okay, so I have given little bit description of these two organs, these two digestive glands, and what they do, what they secrete. So liver is reddish brown multi-lobed gland. Okay, so color and इसके structure के बारे में बताया गया है. There are many lobes which unites together to form a liver. So liver will look something like this, Yeah. So these are, if you consider these as one lobe, 2, 3, 4, so multi-lobe like that, which secretes a greenish alkaline fluid, okay, called bile, which is stored in gallbladder. So underneath the liver, you are going to find a small sac, and in that sac, like here, you are going to find this type of sac, and this sac is none other than gallbladder. So this liver is going to form the bile, and it is going to store it into the gallbladder. From the gallbladder, the bile will go into the intestine, and it will do whatever it does. Okay. Pancreas, it is a branched, flat, elongated, pale yellow gland. It secretes digestive enzymes into the intestine. Okay. It secretes digestive enzymes into the intestine. So digestive enzymes will help in digestion, and bile, it generally helps in neutralizing acid, and the bile also helps in emulsification of fat, that is fat breakdown में भी मदद करता है. ठीक है, अब इनको एलिमेंट्री कैनल में कनेक्टेड करके समझेंगे बाद में, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. रेस्ट आई एम कीपिंग इट असाइड. नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट व्हाट आर द organs present in the alimentary canal. Alimentary canal has a mouth which leads to pharynx. Obviously हमको पता है pharynx से there will be two connection. One will be of windpipe, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था respiration में, जिसके थ्रू एयर जाता है, and another will be esophagus or food pipe. From the esophagus, the food will move to the stomach. From stomach, intestine. Their intestine has three regions: duodenum, ileum, rectum. Duodenum is the region where the breakdown of the food occurs. Ileum is the region where the reabsorption occurs. In rectum, the fecal matter is stored and water is reabsorbed. From the rectum, it goes into the cloaca. Cloaca के बारे में हम लोगों ने एनिमल किंगडम में बहुत बार बात किया है. It's a common chamber where several system opens, like urinary system, gonad related system, genital related system, as well as alimentary canal. All of these things opens in one common chamber, which is called as cloaca, and from the cloaca the fecal matter will go out. So food ingestion will occur through the mouth, and egestion means defecation, removal of fecal matter will occur through the cloaca. Okay, so these parts, what are these parts, what happens in these parts, these things we will discuss along with a diagram. The diagram is very simple. Still we will make a diagram, and we will try to understand that where are these structures present, how are they present, and what are their characteristics. At last we will discuss about the functional significance of this digestive system, what occurs in this digestive system when a frog ingests a food. Okay, so make notes. So यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम बनाया है. ठीक है, एंड इस डायग्राम में यू कैन सी जो भी एलिमेंट्री कैनल में कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वी हैव ड्रॉन ऑल ऑफ देम. Mouth, through the mouth we know the frog will ingest the food with the help of its tongue, sticky protrusible tongue. We have talked about that yesterday. So from the mouth the food ingestion will occur. The mouth will pass from the buccal cavity, it will come into the pharynx. You can see in pharynx there are two ways from the pharynx. This is windpipe. This is the direction of windpipe which will go to the lungs, and this is the direction of food pipe. Okay, so the opening and closing of windpipe and food pipe is basically controlled by a lead kind of structure called as epiglottis. Guards the opening and closing of food pipe. That means when the air will come, at that time this epiglottis will close the food pipe, because air को stomach में आके क्या करना है, so the air will swiftly pass into the windpipe.
and if the food is ingested, at that time the epiglottis will close the windpipe, because food should not enter inside the windpipe. Hence you can say the epiglottis checks the opening and closing of food pipe as well as windpipe. This is the food pipe, esophagus. Okay, through this food pipe the food will come and it will fall into the stomach. Stomach has two parts, two regions. The broader part, bigger part is called as cardiac, and the smaller part, posterior part, is called as pyloric. So this is cardiac region, this is pyloric region. Okay, so stomach के बारे में थोड़ा सा notes दिया है. Stomach lies on the left side of the body cavity. Okay, it has a gastric gland present, which is a multicellular gland. Unicellular, multicellular के बारे में हम लोगों ने tissue chapter में बात किया. So gastric gland is a multicellular gland which is present inside the stomach, and it secretes pepsinogen. Pepsinogen is a proteolytic enzyme. That means enzyme which can do proteolysis. Proteo माने प्रोटीन का lysis, प्रोटीन का breakdown. Pepsinogen is a proteolytic enzyme. That means pepsinogen breaks down protein. And then there are some unicellular gland also present. Okay, these cells are called as auxinitic cells, and this cell releases HCl. So you will have to remember this, that the multicellular gland releases protein digesting enzyme, and the unicellular gland of the stomach releases HCl, hydrochloric acid. है ना? So HCl is a acid, we know that. Now the stomach leads to the intestine. This is the intestine part. Okay, starting right from here till here. Okay, and you can see the intestine is divided into three parts. The first part is duodenum, ileum, rectum. Okay, rectum opens into cloaca, and cloaca has a cloacal aperture through which the things goes out. Okay, now as you can, like ये जो फुट पाइप है ना, इस फुट पाइप के ऊपर यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे कहीं पे लिवर प्रेजेंट है. सो इन केस ऑफ फ्रॉग द लिवर इज प्रेजेंट बहुत ऊपर. तो लिवर, ये जो ओसोफेगस है उसके लेवल पे यहाँ कहीं पे लिवर प्रेजेंट होगा, एंड उसके नीचे कहीं पे पेनक्रियस होगा. ओके, सो फ्रॉम द लिवर बाइल कम्स आउट. ओके, वी नो लिवर फॉर्म्स बाइल, स्टोर्स द बाइल इन गोल ब्लैडर. सो वी कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस. यहाँ पे फिलहाल मैं इस विंड पाइप को मिटा देता हूँ, मैंने इसलिए थोड़ा जगह यहाँ पे रखा. ठीक है, ये फुट पाइप जो है, इस फुट पाइप के इधर लिवर प्रेजेंट होगा. ओके, सो लिवर इज समथिंग which will be present here like this. This is liver, this is liver, like this. Okay, लेवलिंग अच्छे से करना. फुट पाइप कौन सा है वो लेवलिंग अच्छे से करना है. ठीक है, तो क्या झमेला है भाई. ये है फुट पाइप. हाँ, और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो फुट पाइप नहीं है, वो लीवर है. ये हो गया लीवर. तो लीवर के नीचे यहाँ पे ऐसे ये हो गया G.B, गॉल ब्लैडर. ठीक है ना. एंड हम लोग देखेंगे यहाँ कहीं पे ऐसे करके कहीं पे. ठीक है ना, स्टोमक के ऊपर थोड़ा सा ऐसा जगह पे अटैच है एक ऐसा ऑर्गन जिसका नाम है क्या, पेनक्रियास. ओके, सो लिवर विल फॉर्म बाइल एंड इट विल स्टोर द बाइल इन गोल ब्लैडर. So from the gallbladder a duct will come out which will bring the bile. पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी एक डक्ट के थ्रू आएगा. ठीक है, तो ये जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग क्या डक्ट बुला सकते हैं? इसको हम लोग बुला सकते हैं बाइल डक्ट, या फिर बिकॉज इसके थ्रू बाइल आता है, या फिर इसको हम लोग बुला सकते हैं हेपाटिक डक्ट. हेपाटिक डक्ट, हेपाटिक, हेपा माने लिवर. ठीक है ना, बिकॉज ये लिवर बाइल बना के गोल ब्लैडर में स्टोर कर रहा है, एंड गोल ब्लैडर से जो बाइल है वो हेपाटिक डक्ट के थ्रू निकल के आता है. सो दिस इज हेपाटिक डक्ट एज इट इज कनेक्टेड विद द लिवर, एंड दिस डक्ट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, पेनक्रियाटिक डक्ट. PANCREATIC, pancreatic duct, P duct. Okay, both these duct will join to form a common duct which will come and open into the duodenum. So this common duct is called as hepatopancreatic duct. क्योंकि hepatic duct and pancreatic duct ने मिलके ये duct बनाया है, इसलिए hepatopancreatic duct, HEPATO, hepatopancreatic duct which will come and open into the duodenum. तो duodenum में देखो क्या लिखा है, it receives bile and pancreatic enzymes through hepatopancreatic duct. हो रहा है, लीवर गोल ब्लैडर बाइल बना के गोल ब्लैडर में स्टोर, गोल ब्लैडर से हेपाटिक डक्ट बाइल को लेके आ रहा है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स लेके आ रहा है, दोनों
डक्ट मिलके कॉमन डक्ट बनता है हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो आगे यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो स्पेलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, HP डक्ट का हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। फिर जो सेकंड रीजन है इलियम, इलियम में क्या बोला गया है, इट हैज न्यूमेरस ब्राश बॉर्डर्ड सेल्स। तो ब्राश बॉर्डर्ड सेल्स आर नोन फॉर डूइंग व्हाट, एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन करेगा, फूड एब्जॉर्प्शन होगा इलियम में। फिर दिस इज रेक्टम, रेक्टम में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ, रेक्टम में होता है स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, ये जो रेक्टम है यहाँ पे आके फीकल मैटर भी स्टोर होगा, एंड इफ in that fecal matter if there is present some water, so there will be some small this kind of structures present called rectal papilla, rectal papilla, this अंदर का structure जो अभी मैंने draw किया है rectal papilla, which will absorb the water and put it back into the body. Remaining fecal matter will come out into the cloaca and through cloacal aperture it will go out. Okay, so this is how the alimentary canal looks like, and इसका अगर अभी हम लोग फंक्शन डिस्कस करें तो फंक्शन अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका मैं नोट तुम लोग को अभी लिखा के दूंगा। सो फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। बहुत गर्मी है भाई। फंक्शन कुछ ऐसा होगा, द फ्रॉग इज गोइंग टू ट्रैप some insects, it is going to ingest some insect with the help of its sticky protrusible tongue. It will throw out the tongue, stick the insect and bring it inside the mouth. Frog does not have teeth present. Okay, so frog में जो माउथ है उस माउथ में सिर्फ एक ही टीथ प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली वो फ्रॉग का माउथ में ऐसा टीथ नहीं है जो फूड को ग्राइंड कर सकता है ना। तो माउथ से वो इंजेस्टेड फूड माउथ से वो इंजेस्टेड फूड बकल कैविटी के थ्रू आएगा कहाँ, फेरिंग्स। एपिग्लोटिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट, विंड पाइप, बिकॉज ये फूड है तो फूड आगे घुसेगा किधर, फूड पाइप में। फूड पाइप से वो फूड आएगा आके गिरेगा किधर, स्टोमक में। स्टोमक में वी नो पेप्सिनोजेन रिलीज होगा इन HCl, देन स्टोमक विल मिक्स दिस पेप्सिनोजेन एंड HCl विद द फूड व्हिच हैज रीच्ड इनटू द स्टोमक। तो ये मिक्सिंग के वजह से यहाँ पे एक सेमी सॉलिड है ना, सेमी सॉलिड सेमी डाइजेस्टेड फूड एक बनेगा जिसको हम लोग काइम बुलाते हैं, CHYME, काइम। ओके, वो जो काइम है जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, जब फूड जो यहाँ पे स्टोमक में पहुंचा है, व्हेन दैट फूड मिक्स्ड विद द पेप्सिनोजेन एंड HCl, सो आफ्टर मिक्सिंग द आउटकम रिजल्ट, द आउटकम प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज काइम, CHYME. That chyme will come into the duodenum. When that chyme comes into the duodenum, hepatopancreatic duct will release what? Pancreatic enzymes and bile. Okay? बाइल क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो HCl का एसिडिटी है, बाइल उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एंड फूड में जो फूड यहाँ आया है उस फूड में अगर कोई फैट है उस फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा बाइल। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, एवरीथिंग। ओके, आफ्टर दैट डाइजेशन इज डन, दैट फूड विल मूव इनटू द इलियम। इलियम क्या करेगा, फूड ब्रेक डाउन तो डुओडेनम में हो चुका है, बाइल एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम ने मिलकर कर दिया है, तो इलियम क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन फूड को एब्जॉर्ब करके बॉडी में डाल देगा। ठीक है, और जो फूड इधर डाइजेस्ट नहीं हो पाया है या फिर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, दैट फूड विल कम डाउन एंड गेट स्टोर्ड इनटू द रेक्टम, दैट इज पोटी। ठीक है, वो हम लोग के केस में भी होता है, हम लोग जब मुंह से खाते हैं, एवरीथिंग डज नॉट गेट्स ब्रोकन डाउन इन आवर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, एंड एवरीथिंग डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड बाय आवर इंटेस्टाइन और बाय आवर स्टोमक, कंप्लीट नहीं होता है। तो जो डाइजेशन नहीं हो पाया, जिस फूड का या फूड का जिस हिस्सा का डाइजेशन नहीं हो पाया या फूड का जिस हिस्सा का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, वही हमारा पोटी बनता है। दैट इज ओनली द फीकल मैटर जो आके रेक्टम में स्टोर होगा। रेक्टम में रेक्टल पेपिला विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दैट फीकल मैटर एंड देन द फीकल मैटर विल कम इनटू द क्लोका, क्लोकल एपर्चर। सो दिस इज द फिजियोलॉजी ना। ठीक है, इसका मैं कभी नोट दूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स और व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रीटी मच सिमिलर विद द ह्यूमन, बट ह्यूमन में हम लोग और ब्रॉडली पढ़ेंगे, यहाँ पे बस आई एम डूइंग इट जितना नेसेसरी है उतना। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। मेक नोट्स, मेक डायग्राम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, उसका मैं एक नोट अभी दूंगा, तो इसको लिख लो। सो यहाँ पे बोर्ड में वही सब चीज लिखा है जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले डायग्राम में जो मैंने तुम लोग को समझाया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एंड
जो भी डायग्राम में समझाया है उसको एक नोट के अकॉर्डिंगली मैंने दे दिया है, ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू गिव यू द ओवरव्यू। अब इसमें तुम लोग को कुछ ऐड करना है, ठीक है, माइनस तो नहीं करना है, कुछ ऐड करना है वीडियो को समझ के। जब मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया तो उसको समझ के अगर इसमें कुछ ऐड करना है इन द मैकेनिज्म, यू कैन ऐड इट और यू कैन जस्ट राइट दिस नोट, okay, after you finish doing that diagram and writing whatever I have written. After that if you will obviously see the mechanism, क्योंकि एक ही साथ डिस्कस किया। After seeing the mechanism, if you want to add something into this note, you can do it, okay? So यहाँ पे अच्छे से वही सब दे दिया है, काइम, डुओडेनम क्या करता है, इलियम क्या करता है, रेक्टम में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, ओके, यही सब यहाँ पे अच्छे से एक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली, एक नोट के अकॉर्डिंगली आई हैव प्रोवाइडेड यू, ओके। सो हियर the digestive system is done. Now we will talk about the circulatory system, which is another very important system and very like बहुत interesting mechanism है उसमें, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तुम लोग इसका नोट बना लो, ठीक है। So here we are discussing about the heart of frog. We know frog is an amphibia and amphibia has 3 chambered heart, is not it? So in the 3 chamber, this is one chamber, this is another, and this one is the third, okay? So this chamber is called ventricle. They have 1 ventricle and 2 atrium, okay? We are seeing this heart from the dorsal point of view. पकड़ लो एक frog, मैं तो frog नहीं बन सकता, लेकिन मान लेते हैं जो वाल है, ठीक है, ये वाल में मैं frog हूँ, मैं ऐसे करके बैठा हूँ, तो डोर्सली अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो मेरा हार्ट का क्या दिखाई देगा, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल है, ठीक है, बिकॉज हम लोग डोर्सली देख रहे हैं। क्यों डोर्सली देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डोर्सली हम लोग को दिखाई देगा ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इस हार्ट के ऊपर, इस हार्ट के ऊपर अगर हम लोग डोर्सली देखेंगे तो ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इसके ठीक ऊपर एक हम लोग को इस तरीके का ट्राइंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देगा, और ये जो ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है वो हार्ट के ऊपर है, ठीक है ना। ये अगर हार्ट है, ये अगर हार्ट है, इसके ऊपर ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको मैंने ऐसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, साइनस वेनोसस, ठीक है। तो ये जो साइनस वेनोसस है, दिस साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट डोर्सली ओवर द हार्ट, मैंने वो लिख के दिया है। क्या करता है, कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा एंड पोर्स इट इनटू राइट एट्रियम। कलेक्ट करके इसका इंटरनल कनेक्शन राइट एट्रियम के साथ है, राइट एट्रियम में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइनस वेनोसस ने कलेक्ट किया है उसको राइट एट्रियम में डाल देगा। तो दिस साइनस वेनोसस हैज अ कनेक्शन विद द राइट एट्रियम, ओके। लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस ये क्या करता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड स्किन एंड पोर्स, यहाँ पे वो मैंने नहीं लिखा है, एंड पोर्स इट इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये जो लेफ्ट एट्रियम है, उस लेफ्ट एट्रियम में ये कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसेगा और इसमें गिरेगा, ठीक है। तो ये क्लियर कर लो, ये राइट एट्रियम है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके गिरता है from the sinus venosus, collected by sinus venosus and poured into the right atrium. So right atrium will receive deoxygenated blood. Left atrium is connected with conus arteriosus which collects oxygenated blood from lungs and skin, क्योंकि हम लोगों ने respiration पढ़ा है, lungs and skin helps in respiration, वहां से जो blood आएगा वो oxygenated blood होगा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा, that oxygenated blood will fall into the left atrium. Now the blood of left atrium and the right atrium will come into where? Into the ventricle, the third chamber, and third chamber has no separation. So in the ventricle, the oxygenated blood of left atrium and deoxygenated blood of right atrium, whenever it will come into the ventricle, when the heart will beat, when both this right atrium and left atrium will contract, they will push their blood into the ventricle. So when the blood will come into the ventricle, ठीक है, अब ये साइनस वेनोसस को भूल जाओ, ठीक है, जो इसके ऊपर है, अभी वेंट्रिकल पे फोकस करो, ये जो चेंबर है इस चेंबर पे फोकस करो, ठीक है। इस चेंबर में जब इन दोनों का ब्लड आएगा, ये ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मिक्स विथ वन अनदर एंड वी विल कॉल दैट ब्लड एज मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक पार्टीशन है, यू कैन सी, बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन देयर ब्लड कैनॉट मिक्स, बट व्हेनेवर दे विल पंप
the blood of right atrium deoxygenated blood and the blood of left atrium oxygenated blood will come into the ventricle and they will get mixed. This blood is called as mixed blood. When the ventricle will pump, ventricle भी तो पंप करेगा, जब ventricle पंप करेगा, ventricle का blood किधर आएगा, इस चेंबर में आएगा. ये जो चेंबर है ये ventricle के नीचे है. इस चेंबर का नाम क्या है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है. ठीक है, 3D डायग्राम नहीं कर सकते हैं इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा. वेंट्रिकल के नीचे एक चेंबर प्रेजेंट है जो है ट्रंकस आर्टेरियोसस, एंड हार्ट के ऊपर डोर्सली ऊपर प्रेजेंट है ये साइनस वेनोसस. तो जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो वेंट्रिकल का ब्लड किधर आएगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस. ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है, देखो मैंने लिखा है रिसीव्स मिक्स्ड ब्लड पम्प्ड आउट बाय द वेंट्रिकल. तो ट्रंकस आर्टेरियोसस में वेंट्रिकल का ब्लड आएगा. ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है उसका हार्ट के पीछे से, पीछे इस हार्ट के उस तरफ क्या है हम लोग को तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रंकस आर्टेरियोसस का पीछे से एक कनेक्शन है जो जाके ऐसे करके खुलता है, हार्ट के ऊपर ऐसे करके खुलता है. ठीक है, यहाँ से भी मिक्स ब्लड निकलेगा जो ट्रंकस आर्टेरियोसस से आया है, यहाँ से भी मिक्स ब्लड निकलेगा जो ट्रंकस आर्टेरियोसस से आया है. सो फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्लो को समझो. साइनस वेनोसस से मैंने स्टार्ट किया साइकिल, मैंने बोला साइनस वेनोसस विल कलेक्ट deoxygenated blood of the whole body and it will pour that deoxygenated blood in right atrium. Conus arteriosus will collect oxygenated blood from lungs and skin and pour it into the left atrium. When these two chamber will contract, their blood will come into the ventricle. The ventricle mein blood will get mixed with one another, we call that blood mixed blood. That mixed blood will come out from the ventricle. When the ventricle will pump, it will come out from the ventricle and it will fall where? Into the chamber which is present below the ventricle called as truncus arteriosus. Now the truncus arteriosus has a पीछे से connection with the two opening like this. These two opening are called as aortic trunks. Collectively इसको aortic trunk बुलाते हैं, but this one is going on the left side, तो इसको क्या बुलाएंगे, left aortic trunk, and this one is going on the right side, this will be called as right aortic trunk. So RAT means right aortic trunk, LAT means left aortic trunk. So they in them the blood from the truncus arteriosus will come. So what blood will go out from the right aortic trunk, mixed blood. What blood will go out from the left aortic trunk, mixed blood. ठीक है, because यहाँ से आ रहा है. Now जो right aortic trunk का mixed blood है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है sends blood to the lungs and skin. कौन, सॉरी, lungs and skin में भेजेगा कौन, LAT. ठीक है, एंड RAT सेंड्स द ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. माने इस RAT के थ्रू जो M ब्लड निकलेगा, M ब्लड माने मिक्स ब्लड, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा. ठीक है, CO2 लेगा. ये मिक्स ब्लड है. मिक्स ब्लड जब ऑक्सीजन देगा एंड CO2 लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये मिक्स ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं. मिक्स ब्लड जो RAT से निकला वो जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जाके बॉडी के डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा. तो जब ऑक्सीजन दे देगा एंड CO2 लेगा तो ऑक्सीजन का लेवल तो मिक्स ब्लड में कम हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा. इस तरीके के ब्लड को हम लोग क्या बुलाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड लेफ्ट एट्रियम से जो M ब्लड निकलेगा, मिक्स ब्लड निकलेगा, वो किधर को जाएगा, वो जाएगा लंग्स में और स्किन में. ये ब्लड मिक्स ब्लड लंग्स एंड स्किन में क्यों जा रहा है, सो दैट वहां जाके CO2 को बाहर भेज सके एंड ऑक्सीजन को अंदर ले सके. दैट मींस दिस मिक्स ब्लड व्हिच विल गो इनटू द लंग्स एंड स्किन, व्हिच विल गो इनटू द लंग्स एंड स्किन विल टर्न इनटू व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉनस आर्टेरियोसस के थ्रू आके कहाँ घुस जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में. एंड ये जो मिक्स ब्लड जो बॉडी में गया एंड बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन दिया एंड CO2 लिया और ये करके बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कहां से घुसेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके घुसेगा यहां से, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके घुसेगा यहां से, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके घुसेगा यहां से, यहां से जो घुस रहा है वो किसमें घुस रहा है, साइनस वेनोसस में. साइनस वेनोसस विल पोर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम. तो देखो कहां से शुरू किया था, साइनस वेनोसस कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, वहां से शुरू किया था. कॉनस आर्टेरियोसस कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द लंग्स एंड स्किन, वहां से शुरू किया था एंड इट पोर्स इट हियर. कॉनस आर्टेरियोसस पोर्स हियर. फिर दोनों का ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स्ड, वो मिक्स ब्लड ट्रंकस आर्टेरियोसस ऊपर की तरफ भेजेगा. एक मिक्स ब्लड का हिस्सा इधर से निकलेगा, एक मिक्स ब्लड का हिस्सा इधर से निकलेगा.
जो मिक्स ब्लड का हिस्सा यहां से निकलेगा वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, कोना कोना में जाएगा, ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा, डीऑक्सीजनेटेड बन के वापस साइनस वेनोसस के थ्रू आके घुसेगा, घुस के राइट एट्रियम में गिरेगा। एंड जो मिक्स ब्लड इधर से निकलेगा वो लंग्स एंड स्किन में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बनेगा, बन के कोनास आर्टेरियोसस के थ्रू इधर गिरेगा। तो देखो वापस पहुंच गए सेम जगह पे, फिर इनका ब्लड इधर मिक्स होगा, फिर निकलेगा लाइक दैट। सो हार्ट पंप्स आउट मिक्स ब्लड। What kind of blood circulates in the body? Mixed blood. What kind of blood reaches the lungs and skin for doing the gaseous exchange? Mixed blood. What kind of blood will reach to the cell and tissues? Mixed blood. Okay, so this is how the heart of the frog works. ठीक है, so I hope ये समझ में आया है, different part समझ में आया है। ठीक है, अब इसका मैं कुछ नोट्स तुम लोग को दे देता हूँ, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, लिख लेना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिस्कस किया है, जैसे कि हार्ट मिड वेंट्रली, ठीक है, प्रेजेंट इन द एंटेरियर ट्रंक रीजन। एडल्ट फ्रॉग हैज हेड एंड ट्रंक, तो ट्रंक का ऊपर का हिस्सा में हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट रेट 64 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है। हाँ, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट हार्ट इज एनक्लोज्ड विद इन अ थिन ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड सेल। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने हार्ट बनाया उसके ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट है called pericardium which protects the heart from mechanical shocks. So अभी जो हार्ट हम लोगों ने बनाया उस हार्ट के ऊपर 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन एक है जो पूरा का पूरा हार्ट को एनक्लोज कर रहा है, एंड दोज मेम्ब्रेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओपनिंग ऑफ वेंट्रिकल इनटू ट्रंकस आर्टेरियोसस पढ़ा है अभी हम लोगों ने, इज गार्डेड बाय 3 सेमिलुनर वेल्व्स। ठीक है, और वेल्व्स का काम क्या है? आई हैव डिस्कस्ड दिस। वेल्व्स प्रिवेंट्स द व्हाट? बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। सो जब वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड ट्रंकस आर्टेरियोसस में निकलेगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस का ब्लड गोज आउट फ्रॉम द ऑर्टिक ट्रंक। नाउ दैट ब्लड शुड नॉट डू बैकफ्लो, दैट ब्लड शुड नॉट कम बैक इनसाइड द वेंट्रिकल। इसलिए वेंट्रिकल एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस का जो ओपनिंग है उस ओपनिंग में देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट व्हिच विल चेक कि ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टेरियोसस में जाए, ट्रंकस आर्टेरियोसस से वापस वेंट्रिकल में ना आए, वो घूम के एट्रियम से होते हुए आएगा। Their blood is made up of plasma which is 90%. प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? डिसॉल्व मिनरल्स, एब्जॉर्ब फूड, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सेट्रा, माने जो भी सोल्यूबल सब्सटेंसेस होता है, these are present in plasma. And blood corpuscle which is 10%, and blood corpuscle में क्या क्या मिलेगा? RBC, WBC, platelet. Okay, so RBC, WBC, platelet, WBC amoeboid shape, platelet जो है वो होगा in case of them spindle shaped. एंड आरबीसी के बारे में तो पता ही है, आरबीसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इनका आरबीसी होता है ओवेल, है ना, इनका आरबीसी होता है बाइकन्वेक्स, है ना, न्यूक्लिएटेड, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया टिश्यू चैप्टर में। अच्छा, फ्रॉग ऑल्सो हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्फेटिक हार्ट्स। जो नॉर्मल हार्ट है वो तो है ही, जो ब्लड को पंप करता है। अदर देन दैट लिम्फेटिक हार्ट्स, लिम्फ का सर्कुलेशन करने के लिए भी बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ हार्ट, माने 4 हार्ट के जैसा स्ट्रक्चर है जो बॉडी में लिम्फ को पंप करता है। नाउ व्हाट इज लिम्फ and what is the function of lymph, ये सब मैं अभी इधर डिस्कस नहीं करेगा, that we will talk when we reach the circulation chapter, human physiology, वहाँ पे हम lymph को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जान लो कि बॉडी में ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड भी है जिसको हम लोग लिम्फ बुलाते हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी करने वरने में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन वो जो लिम्फ है उसको पंप करने के लिए फ्रॉग में एक्स्ट्रा हार्ट प्रेजेंट है, 2 pairs of lymphatic hearts are present which will pump the lymph in the body. ठीक है, so I hope तुम लोगों को इसका पहले का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिया है वो भी लिख लेना। So we are done with the general characters of frog, digestive system of frog, respiratory, circulatory. बचा है excretory, sensory, excretory, nervous, sensory, reproductive. Okay, so I think we will cover up these topics in 2 more videos. Okay, so I hope you understood today's video. अच्छे से देखना, mechanisms के पोर्शन को लगने से रिवाइंड करके देखना 1-2 बार, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा, हार्ट का स्पेशली। So I hope you understood it. So concluding today's video here. Bye bye.